Okay, so today we are going to start with chapter number 16, area of polygons. I want everyone to come down to page number 213, where few important concepts are there that we are going to recall about perimeter and area that you already studied in class number 6th and 7th. So let us come down to page number 213, starting of the chapter, area of polygons. We are going to see what is a polygon, what is a perimeter, what is area, circle, square, rectangle, and parallelogram and triangle. These were the basic things that we have already studied in the previous class, the perimeter and area of all these things. But now what we are going to see is the different types of parallelograms. So let us have a look. I want everyone to open their textbook and start writing what I am writing over here. The concepts will only be clear if you write it down. You are not able to score the marks in your exam. The main reason is you don't listen to me. Just listen to me, take your books out, write whatever I'm writing, because whatever I give you is very important for your exam point of view. So let us now begin today's fourth of February, area of polygons. एरिया पढ़ना है पॉलीगॉन्स के बारे में, पेरीमीटर को नहीं देखना है, बट हम जो रिवीजन करेंगे उसमें हमें सब कुछ देखना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट. हियर वी हैव अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर तो हम थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे शेप. अभी उसका हम पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे? पेरीमीटर, और यहाँ पे लिख देते हैं एरिया. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. और एरिया क्या होगा? साइन का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया स्क्वायर. ठीक है, अब हम देखेंगे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और यहाँ एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. अब हम देंगे ट्राइंगल. ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑल साइड्स. मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. अच्छा, ट्राइंगल में एरिया कैसे ढूंढते हैं? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये जो बेस है ना, ये और ये हाइट यहाँ से होती है. ट्राइंगल में दिस इज कॉल्ड द हाइट. ओके, नाउ कम्स सर्कल. सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता है, सरकमफरेंस होता है. Here we have circumference. Circumference होगा 2 पाई r और एरिया होगा पाई r स्क्वायर. ये हमने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. So let us devise. Square has got 4 into side, side square area. Rectangle में 2 into length plus breadth, area is L into B. Triangle में all the sides addition is perimeter, area is equal to half into base into height. Circle में perimeter नहीं होता है, circumference होता है. So circumference is equal to 2 pi r and area is equal to pi r square. I want everyone to write it down quick. Now, today we are going to start with a new topic, and that new topic is on page number 214, that is rhombus. We have to find the area of rhombus. Just have a look what is a rhombus and how do we find the area of that rhombus. एरिया फाइंड करना है ऑफ rhombus.
rhombus is a type of square which is just slant. ठीक है, ओके। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर देंगे दिस इज ए बी सी एंड डी। हियर वी हैव अ डायगोनल, व्हाट इट इज कॉल्ड, डायगोनल। यहाँ पे डायगोनल जो होती है 90 डिग्री पे बनती है। अच्छा, ये AC जो है उसको हम बोलेंगे डायगोनल 1, और BD जो है उसको हम बोलेंगे डायगोनल 2। AC और BD ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या कहता है? एरिया ऑफ रोम्बस ये कहता है कि जब कभी आपको ये डायगोनल्स दिए गए हैं तो इसका एरिया होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय B1 मल्टीप्लाइड बाय B2। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम इसको एग्जांपल के तरीके से लेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोम्बस A B C and D, okay, here there is a diagonal, here it is a diagonal। यहाँ पे हमको मेजरमेंट दिया है AC is equal to 16 सेंटीमीटर and BD is equal to 25 सेंटीमीटर। Find area of rhombus। तो अपने को लिखना है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 क्या है 16, D2 क्या है 25, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 25। सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आवशे। पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कितना लिखूं यहाँ पे? एवरीवन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। Half into 16 into 25. What will be your answer? Everyone put your answers in the chat box. Great. One more formula we have, area of rhombus. मानो आपको डायगोनल्स नहीं दिए हैं तो आप क्या करोगे? लेट अस सी। You have one formula fixed. Area of rhombus is equal to, यहाँ पे आपके पास वन फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी ऑल साइड्स आर पैरेलल, ईच अदर ऑपोजिट साइड। तो इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये चीज याद रखना, जो पैरेललोग्राम होगा उसका ये एरिया फाइंड करना तो रहेगा ही। मतलब ये फॉर्मूला एरिया के लिए तो रहेगा ही, और ये फॉर्मूला डायगोनल्स दिए गए हो तब, बेस और हाइट दिया गया हो ये फॉर्मूला तब। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, हमने डायगोनल वाला तो एग्जांपल देख लिया, अब हम देखेंगे बेस और हाइट दिया हो तो कैसे। चलो, अभी हमको ऐसा पूछा है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। नाउ इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 15 15 15। यहां से जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 15 इंटू 90। अगर एरिया है ये सेंटीमीटर है तो आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
I want everyone to put the answers in the chat box. सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना कंपलसरी है. जस्ट डोंट पुट द नंबर्स along with the answer. Just write down centimeter square. I want everyone to answer. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रोम्बस को ही देखते हुए. जस्ट पे अटेंशन. आपको पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगा. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. याद रखो, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट. आपको इतना सारा याद नहीं रखना है. आपको साइड वन साइड टू याद रखना है. तो 10th स्टैंडर्ड के लिए. नाउ जस्ट सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी जो है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये साइड और ये साइड को ऐड करेंगे तो इसका साइड का स्क्वायर मिलेगा. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. याद रखना. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विथ वन मोर क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक रोम्बस दिया गया है. ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज योर रोम्बस. और उसमें हमें एरिया फाइंड करना है. सो एरिया वी हैव टू फाइंड. आपको पता है देयर आर टू फॉर्मूलाज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. आपको दिया जाएगा कि उसकी लेंथ जो है वो 10 है. अगर यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 सेंटीमीटर में बात हो रही है. और बोला गया वन डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर. ये जो डायगोनल है वो 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपको तो एरिया फाइंड करना है ना. आपके पास हाइट है ना दूसरी डायगोनल है. आपके पास दो फॉर्मूला है, हाफ इंटू D1 इंटू D2. पर आपके पास ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है. अच्छा, दूसरी फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट. आपके पास बेस है लेकिन हाइट नहीं है. तो दोनों फॉर्मूला में से कौन सी फॉर्मूला लगेगी? अब मैंने तो आपको दो फॉर्मूला दे दी और इस क्वेश्चन में तो एक साइड दी गई और एक डायगोनल दिया गया. अगर ये लेते हो तो हाइट नहीं है, ये लेते हो तो दूसरा डायगोनल नहीं है. देन व्हाट यू आर सपोज टू डू? यस, नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट. यहां से डायगोनल अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा. ठीक है, और इसका आधा हो जाएगा. 12 का आधा क्या होगा? 6. तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा. ये हो गया 6, ये हो गया 10. तो हमें तो यही फाइंड करना रहेगा ना जो दूसरी डायगोनल चाह रहा है. ये मैंने, समझ लो ये पॉइंट डी सी है. ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल दिया. यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है. तो 90 डिग्री के हिसाब से मैंने समझाया 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है. तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम x लिखते थे, x स्क्वायर होगा. 10 स्क्वायर हो गया 100 और 6 स्क्वायर हो गया 36. सो 100 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर. ये 36 इस साइड चला जाएगा. 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8. अगर ये 8 होता है तो ये पूरा का पूरा AC जो है वो 16 होगा. ये हो गया डायगोनल 2. AC जो है वो 16 हो, 16 इज इक्वल टू डायगोनल 2. BD जो है वो 12 है, वो हमारा हो गया डायगोनल 1. अब आपके पास ये वाली फॉर्मूला तो है एरिया फाइंड करने के लिए. कम डाउन टू पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3. बिफोर ट्राई दिस वन, वी हैव सॉल्व दैट वन. इस फॉर्मूला को लेते हुए आपके पास दो डायगोनल्स है. पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस?
half into diagonal 1 into diagonal 2. 12 into 16 multiply by half. What will be the answer? Half into diagonal 1 into diagonal 2 multiply by. Exactly, the answers are there. Centimeter square लिखना पड़ेगा. If the unit is meters, you have to write meter square. If the unit is centimeter, you have to write centimeter square. Don't confuse yourself into all these things. So it will be 96 centimeter square. Okay. So by this, we end our today's video. Kindly put your attendance, everyone, quick.